Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be a third part of market mechanism for ISC class 12. I hope आपने मेरा पहला दो वीडियो देख लिया है. If you haven't, then I'm going to leave the link in my description below. Kindly go check that out, build your concept, and then come back to this third part of the video. Now ये concluding part होगा जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को आज wrap up कर देंगे. हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चेन इफेक्ट्स करा दिया था, साथ ही साथ साइमल्टेनियस चेंजेस भी करा दिया था. मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. आई होप आपने वो कर लिया है. एंड in this video we are going to move forward with the next topic, that is the special cases changes in demand and supply, which will be from the perspective of elasticity of demand and elasticity of supply. Now if you are wondering, जैसा कि आप देख सकते हैं साइमल्टेनियस चेंजेस हमने कर लिया था. इफ देयर इज एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ राइज इन डिमांड एंड सप्लाई, इफ डिमांड इंक्रीजेस बाय ग्रेटर प्रपोर्शन देन सप्लाई, if supply increases by greater proportion than demand, and then if in some more scenario we have decrease in demand and supply by equal proportion, then over here supply का decrease is more than decrease in demand and demand का decrease is more than supply. हमने ये सब कुछ कर लिया है. If you're wondering where will you get these notes from, in order to get these notes you need to download my app. If you are an Android user, Aryan Tutorial, वहां जाके आप ISC माइक्रो इकोनॉमिक्स को परचेज कर सकते हैं. इट्स एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ 249 rupees. And if you are an Apple user, iOS user, then I would advise you to download Class Plus app and punch in my organization code, which is my organization code is PLYMMV. ठीक है, PLYMMV. इसको आप पंचन करिए and you'll be able to access these notes. Please get your hands onto these notes. This is one of the best notes. इसमें पूरा आंसर राइटिंग कैसे करने का है सब कुछ मैंने डाल दिया है with all the diagrams and everything. ठीक है, so do make use of it. चलो let's get started. आज हम लोग शुरू करेंगे. Today we are going to start with some special cases in demand and supply, where we are going to combine the concept of elasticity now. ठीक है, so some special cases में हम लोग दो perspective से सीखेंगे. One is from demand side and other one is from your supply side. If your demand from demand side, if your demand remains perfectly elastic and then perfectly inelastic, and in दोनों सिनारियो में if your supply increases or decreases, supply अगर increase या decrease करे, so what is going to be the impact on equilibrium price and quantity. And supply side से also we are going to take up, if your supply is perfectly elastic and then perfectly inelastic, and if your demand increases and decreases, तो उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या होगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते. सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. So if demand remains perfectly elastic and if your supply increases or your supply decreases, then what is going to be the impact on equilibrium price and quantity. डायग्राम्स बनाते हैं, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा. We make the quadrant, label it YOX. यहां आ गया quantity, here it will be price. Now perfectly elastic demand क्या हमने सीखा था elasticity of demand में, that consumers are willing to purchase or prepared to pay one single price. So they will purchase everything at a particular price and they will purchase absolutely nothing at a higher price. ठीक है, so सिर्फ एक ही प्राइस प्रिवेल करेगा, एक ही प्राइस एग्जिस्ट करेगा जहां पे दिस इज हाउ योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड लुक्स लाइक. ठीक है, PE, and this is my demand curve. A horizontal straight line parallel to x-axis, depicting that everything will be purchased at one particular price, nothing at a higher price. And
हम लोग इसमें बनाएंगे सप्लाई। सो सप्लाई के लिए चलिए इनिशियल से शुरू करते हैं। तो दिस इज माय इनिशियल सप्लाई। इसमें मैंने अक्सर देखा है बच्चों से गलती क्या हो जाती है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई, वो लोग सप्लाई कर्व को ऐसे बना के आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज डिमांड। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इज योर डिमांड कर्व। सो गलती से नेगेटिवली स्लोपिंग मत कर दीजिएगा। गॉट इट? सो दिस विल बी योर सप्लाई। मार्क कर लेते हैं, दिस इज माई इनिशियल इक्विलिब्रियम वेयर पीई इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हियर क्यूई will be my initial equilibrium quantity. Now if demand is perfectly elastic and if your supply increases, ये है increase in supply, that is rightward shift from S1 SS to S1 S1. So what will happen? Perfectly elastic demand बोलता है कि consumers are willing to purchase everything at one particular price, they will not purchase anything at a higher price. So चाहे सप्लाई इंक्रीज भी हो जाए, स्टिल आपका इक्विलिब्रियम प्राइस इज गोना रिमेन सेम। खाली आप देखोगे कि क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है मार्केट में बोल के इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज टू Q1। ठीक है, सो इसका इंपैक्ट हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, only your equilibrium quantity increases in case अगर supply increase हो जाए। and on the other hand if your supply decreases, so decreases क्या होगा? ये हो गया decrease in supply, S2 this is your decrease in supply। so decrease के केस में भी हम लोग देखेंगे that equilibrium price remains unchanged, E2 यहां आ जाएगा, equilibrium price remains unchanged, खाली equilibrium quantity decreases owing to the fact that supply has reduced। ठीक है, कि अगर supply decrease हो जाए then equilibrium quantity only increases or decreases but over your price remains constant, equilibrium price remains constant। this is your observation। so इसका question कैसे आएगा? क्वेश्चन बन के आएगा that when does equilibrium price remain unchanged with the increase in supply। so अगर आपसे पूछे when does equilibrium price remain unchanged with the increase in supply, उसका पहला मार्क्स आपको मिलेगा लिखने का when there is a perfectly elastic demand, you will get 1 mark for this and 1 mark for making your diagram। यानी आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा बना के आना है with the increase in supply। so if demand is perfectly elastic with the increase in supply, your equilibrium price will remain unchanged, only your equilibrium quantity will rise। I hope that is clear। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, perfectly inelastic demand, and in case of perfectly inelastic demand if your supply increases or supply decreases, what is going to be the impact on equilibrium price and quantity। so आइए डायग्राम बनाते हैं। again we start by the initial labeling करेंगे, quantity, price। now perfectly inelastic demand क्या होगा? perfectly inelastic demand implies that irrespective of change in price, हमने पढ़ा है कि प्राइस चाहे बढ़े या घटे it doesn't matter, quantity demanded will remain constant, it will not change। so in that case your demand will be a vertical straight line parallel to y-axis, depicting that everything will be purchased, a limited quantity will be purchased at irrespective of prices, whether the prices are high or low, limited quantities to be purchased। ठीक है, so आ जाइए इसमें सप्लाई कर्व बनाते हैं। we start by making initial supply, please याद रखिएगा that supply has to be positively sloping। so this is my initial equilibrium and here is my equilibrium quantity and this is my equilibrium price, name it as PE। now if supply increases yani rightward shift, so this is the increase in supply S1 right, this is the increase in supply। अब perfectly inelastic demand का मतलब हो गया limited quantity,
So even if your supply increases, consumers तो उतना ही लेगा जितना लेना है उनको, perfectly inelastic demand की वजह से. So as a result of that, if your supply increases, there will emerge an excess supply for good, unsold surplus, and unsold surplus की वजह से प्राइस नीचे आ जाएगा. इसीलिए आप देखिए नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, नया इक्विलिब्रियम होगा इधर नीचे E1, जहां पे आप देखेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस हो जा रहा है, P1 हो जा रहा है, but equilibrium quantity remains constant, it does not change. So इसका impact क्या हो गया, that equilibrium price reduces in case if your supply increases, while equilibrium quantity remains constant, it does not change. I hope that is clear. And what will happen if your supply decreases? Supply decreases यानी कि leftward shift हो जाएगा supply का, decrease in supply मतलब S2 S2. This is my decrease in supply. अब क्वांटिटी तो लिमिटेड ही डिमांडेड हो रहा है एंड सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए मार्केट में, सो देयर इज गोइंग टू इमर्ज एन एक्सेस डिमांड. ड्यू टू एक्सेस डिमांड देयर विल बी अ शॉर्टेज एंड ड्यू टू शॉर्टेज योर प्राइस विल इंक्रीज. सो देखिए नया इक्विलिब्रियम किधर आएगा, इट विल कम एट E2 वेयर योर इक्विलिब्रियम प्राइस इज राइजिंग, P2. ठीक है. सो अनदर इफेक्ट क्या होगा, दैट equilibrium price will rise in case if your supply decreases, while still your equilibrium quantity will remain unchanged, will remain constant, it will not change. I hope that is clear. So यहाँ पे question कैसा आएगा, when does equilibrium quantity remain unchanged with the increase in supply? अगर increase in supply आता है तो ये वाला part बनाना है खाली. When does equilibrium quantity remain unchanged with the decrease in supply? Decrease in supply यानी supply को आप decrease कर दोगे, ये वाला पार्ट बनाना है आपको डिक्रीज इन सप्लाई का, जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा एंड क्वांटिटी अनचेंज होगा. ग्राफ के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा दैट विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज व्हेन देयर इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है, व्हेन डिमांड रिमेन्स परफेक्टली इनइलास्टिक. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई दिस टाइम. ठीक है, perfectly elastic supply, and if your demand increases or if your demand decreases, so what will happen to equilibrium price and quantity? Start करते हैं by making our quadrant. Y axis origin, X axis यहां आ गया quantity, यहां आ जाएगा price. We start with the initial demand. This is our sorry my bad, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोल रहा है. सो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी क्या होगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज माय परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी ये इंडिकेट करता था इलास्टिसिटी, अगर आपको याद हो, दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एनीथिंग एट वन पर्टिकुलर प्राइस बट दे विल सप्लाई एब्सोल्युटली नथिंग एट अ लोअर प्राइस. ठीक है. सो दिस इज माय परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एंड वी स्टार्ट बाय मेकिंग इनिशियल डिमांड. अब ध्यान दीजिएगा कि यहां डिमांड चेंज हो रहा है, सो डिमांड हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. आप ध्यान से देखो, अंतर है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में. सप्लाई इज पॉजिटिवली स्लोपिंग व्हाइल ओवर योर डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा. सो दिस इज माय डिमांड, दिस विल बी माय इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड हियर is my equilibrium quantity at QE. Now, if my demand increases, this is increase in demand from DD to D1 D1. If demand shifts rightward from DD to D1 D1, हम लोग देखेंगे, observation है that equilibrium price does not change, but just your equilibrium quantity increases from QE to Q1. ठीक है, equilibrium price does not change but just your equilibrium quantity increases with the increase in demand. Now similarly, if your demand decreases from DD to D2 D2, leftward shift, this is decrease in demand. तो यहां पे भी observe करेंगे हम लोग that at equilibrium point 2 your equilibrium price does not change, just your equilibrium quantity decreases. ठीक है, विद द डिक्रीज इन डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस. क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हेन डज इक्विलिब्रियम प्राइस
remain unchanged with the increase in demand or with the decrease in demand? So इसका आंसर क्या होगा? When the supply is perfectly elastic. So 1 mark मिलेगा आपको इसका when the supply is perfectly elastic and diagram का 1 mark. ठीक है, and observation लिख दीजिएगा that equilibrium price remains unchanged and quantity increases or decreases depending upon increase in demand or decrease in demand. I hope that is clear. And the last one, that is perfectly inelastic supply. ठीक है, if your supply remains perfectly inelastic and if your demand increases or demand decreases, what would be the effect on equilibrium price and quantity? So again, we'll make a diagram for this. Y-axis origin, x-axis quantity, price. Now perfectly inelastic supply क्या होगा? Like this. हमने किया भी है. In the elasticity of supply, that producers are willing to offer a limited quantity irrespective of price. के price चाहे जो भी हो, producers limited quantity ही supply करेगा market को. ठीक है? So we'll start with the initial demand. This is how your initial demand will look. Downward sloping. Please upward sloping मत कर दीजिएगा. देख लीजिए इसमें और इसमें अंतर है. इसमें सप्लाई चेंज हो रहा है. ठीक है, एंड यहां डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग चेंज होगा. सो इफ माय डिमांड, हाँ, सो दिस इज माय इनिशियल इक्विलिब्रियम E and this is my equilibrium price PE and equilibrium quantity QE. Now if your demand increases, this is increase in demand, rightward shift, right, DD to D1 D1. Now supply तो limited quantity हो रहा है and if your demand increases, excess demand, due to excess demand shortage की वजह से price बढ़ जाएगा. So नया equilibrium कहाँ आएगा? ऊपर E1 पे, जहां आप देखोगे that equilibrium price increases from PE to P1 but equilibrium quantity remains unchanged. It does not change. Similarly, if your demand decreases, this is your decrease in demand from DD to D2 D2, that is leftward shift. Now limited quantity is being supplied. अगर demand decrease हो जाएगा, so there is an excess supply. Due to excess supply, there will be an unsold surplus, and due to unsold surplus, price will come down. So नया equilibrium कहाँ आएगा? E2 पे, जहां आप देखेंगे कि price reduce हो जा रहा है. ठीक है, P2 price कम हो जा रहा है. So कैसा question आएगा यहाँ पे? When does equilibrium quantity remain unchanged with the increase or decrease in demand? So इसका आंसर आप क्या बोलोगे? When the supply is perfectly inelastic. ठीक है, सो 1 मार्क मिलेगा आपको इसका. एंड ग्राफ बनाने का डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेजिस्लेटिव प्राइस. नाउ लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया लीगल. ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब हो गया लीगल प्राइस. एंड लीगल प्राइस वुड इंप्लाई दैट दीज प्राइसेस आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. सरकार इन प्राइसेस को लगाता है टू रेगुलेट द मार्केट प्राइसेस और टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस. नाउ इसमें हमें दो सर्कमस्टांसेस यानी कि दो सिनेरियोस पढ़ने हैं इन टोटल. वन इज योर मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या इसको प्राइस सीलिंग भी बुलाया जाता है. एंड दूसरा हमें पढ़ना है मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन. मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन या इसको प्राइस फ्लोरिंग भी बोलते हैं. ठीक है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइस सीलिंग के साथ. प्राइस सीलिंग या आप इसको मैक्सिमम लीगल प्राइस भी बोल सकते हो या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी बोल सकते हो. नाउ
Since it is a legal price implies that this price is imposed by government. सरकार लगाता है इस प्राइस को, एंड ये मैक्सिमम लीगल प्राइस है. मैक्सिमम लीगल प्राइस इंप्लाइज कि आप इससे ज्यादा, गवर्नमेंट ने जो सेट कर दिया इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो. सो गवर्नमेंट लीगल प्राइस किसके लिए लगाता है? टू सेफ गार्ड, ठीक है, टू सेफ गार्ड, या आप प्रोटेक्ट भी बोल सकते हो, टू सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, या आप उनको लो इनकम ग्रुप भी बोल सकते हो. ऐसे लोग जो लोग बहुत पैसा नहीं कमाते हैं, लो इनकम ग्रुप, ठीक है. टू प्रोटेक्ट द लो इनकम ग्रुप, बेसिकली दोज कंज्यूमर्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज एनी कमोडिटी at a market price. In order to help them out, in order to provide them with help, government imposes maximum legal price. ठीक है. Now government legal price को लगाता कहां पे है? तो सबसे पहले तो प्राइस जैसे डिटरमाइन होता है मार्केट में डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू, वैसे ही डिटरमाइन होगा. एंड देन जब वो प्राइसेस जस्ट नहीं होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, और इट इज एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर्स, इन दैट केस गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है. तो आइए शुरू करते इनिशियल के साथ. दिस इज माय इनिशियल डिमांड, दिस इज माय इनिशियल सप्लाई, DDSS. दिस इज माय इनिशियल इक्विलिब्रियम, पॉइंट E. दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड हियर इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, PE एंड QE. नाउ प्राइस सीलिंग. सीलिंग नाम है इसका, मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर लगा देगा, ठीक है. सिंस गवर्नमेंट यहां पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस सीलिंग लगा रहा है, अगर गवर्नमेंट प्राइसेस को ऊपर सेट कर देता है तो इट मेक्स नो सेंस. सेटिंग एनी प्राइस अबव इक्विलिब्रियम विल मेक नो सेंस. सो इसके लिए मैं बोलूंगा नो इफेक्ट इट विल हैव. ठीक है, इट विल हैव नो इफेक्ट. व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी डिमांड सप्लाई के थ्रू प्राइसेस PE दैट वाज लोअर देन द सेट प्राइस बाय द गवर्नमेंट सेट हुआ था एट द इक्विलिब्रियम. तो सरकार जब ऑलरेडी मार्केट प्राइसेस नीचे है तो गवर्नमेंट उसको ऊपर क्यों ही लेके जाएगा? इट विल हैव नो इफेक्ट बिकॉज एट अ हायर प्राइस डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, A and B, and there will emerge an excess supply. Due to excess supply, there will emerge an unsold surplus, and unsold surplus के लिए price will again come back to its normal position at PE. So it makes no sense. It will have no effect if the government imposes a price above. Therefore, to be meaningful, to be impactful, government legal price को हमेशा market equilibrium के नीचे set करेगा, say at P2. एंड हमेशा इसको सॉलिड लाइन से लिख के प्लीज मेंशन करके आइएगा. अगर आप ये नहीं करके आते हो आपका नंबर कट जाता है. यू हैव टू राइट ओवर हियर दैट मैक्सिमम प्राइस परमिटेड, कि आप नीचे परमिट कर रहे हो लीगल प्राइस को. मैक्सिमम प्राइस परमिटेड या प्राइस सीलिंग यहां पे लिख दीजिएगा. Now price ceiling is to be imposed below the equilibrium price, only then it will be impactful for the consumers. So these prices are for those consumers who cannot afford to purchase any product at a higher price, at a market price which was set by the market. But क्योंकि गवर्नमेंट अगर लीगल प्राइस को मार्केट से नीचे सेट कर देगा, so at a lower price consumers will be willing to purchase a larger quantity. Let's take by P amount, डिमांड ज्यादा होगा, Q1 quantity, and at a lower price producers will be willing to supply a lesser quantity, Q amount, PQ amount, and this will lead to an excess of demand, right? It will lead to excess demand at a lower price, and due to excess demand there will emerge a shortage of goods. कितना से होगा वो शॉर्टेज ऑफ गुड? अगर मैं माइनस कर दूं OQ1 माइनस OQ2, दैट विल बी माय QP गैप.
ठीक है, OQ1 माइनस OQ2 विल बी माई QP गैप, सो शॉर्टेज क्रिएट हो गया। नाउ सिंस लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है एंड दिस इज अ लीगल प्राइस, लीगल प्राइस मतलब कि प्राइस इससे ऊपर अब नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये प्राइस को सेट कर दिया है, सो इससे ऊपर नहीं जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कुछ इफेक्ट्स निकलेंगे इसके, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स होंगे, दैट इज allocation of अवेलेबल क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे शॉर्टेज क्रिएट हो गया है गुड्स का, तो इन लिमिटेड गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे एलोकेट किया जाएगा, वही होंगे आपके इफेक्ट्स। और वो पहला होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है एट अ लीगल प्राइस, एट अ लोअर प्राइस, देयरफॉर सेलर्स क्या मेथड को अडॉप्ट करेगा लिमिटेड क्वांटिटी को एलोकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी सबसे पहले अराइव करेगा उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू सेलर्स प्रेफरेंस, यानी सेलर जिसको चाहेंगे उसको बेचेंगे। अब सेलर का अगर कोई जान पहचान का है तो वो पहले अपनी जान पहचान वाले को लिमिटेड क्वांटिटी देगा एंड उसके बाद किसी और कस्टमर को बांटेगा। तीसरा इफेक्ट क्या होगा, तीसरा इफेक्ट होगा राशनिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, राशनिंग में क्या होगा कि गवर्नमेंट लो इनकम ग्रुप को एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करके देगा, दैट इज राशन कार्ड, एंड जितने भी लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं दे विल बी एबल टू अवेल एक्सेस दिस लीगल प्राइस थ्रू गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेयर प्राइस शॉप, दैट इज राशन शॉप। सारे लो इनकम ग्रुप वालों को यानी राशन कार्ड होल्डर्स को ये जो लीगल प्राइस है वो सिर्फ राशन शॉप के थ्रू ही अवेलेबल मिलेगा, प्रोडक्ट वहां पे बांटा जाएगा, दैट इज राशनिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम एज योर MCQ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। एंड चौथा इफेक्ट क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। एंड ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि सिंस लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है बोल के कंज्यूमर्स एंड सेलर्स दोनों ही इस लीगल प्राइस को फ्लाउट करेगा, वायोलेट करेगा एंड हायर प्राइस में लिमिटेड क्वांटिटी को बेचेगा, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। आई होप दैट इज क्लियर। सो इसमें से राशनिंग और ब्लैक मार्केटिंग वाला पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप सेक्शन ए के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ब्लैक मार्केटिंग इंप्लाइज सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ हायर दैन द लीगली सेट प्राइस, लीगल प्राइस से ऊपर करके बेचना को ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। एंड राशनिंग इंप्लाइज दैट allocating the limited quantity to the low income group through fair price shop, that is through government approved ration shop. I hope that is clear. एंड चलिए हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज प्राइस फ्लोरिंग, या आप इसको मिनिमम लीगल प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग और मिनिमम लीगल प्राइस। नाउ लीगल प्राइस क्या इंप्लाई करता है, वंस अगेन दिस इंप्लाइज दैट इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार लगाता है इस लीगल प्राइस को। नाउ ये मिनिमम है, मिनिमम का मतलब होता है कि इससे और नीचे ड्रॉप नहीं हो सकता है। सो गवर्नमेंट मिनिमम लीगल प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएगा, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, स्पेशली किसके लिए, स्पेशली किसके लिए, टू एंश्योर फेयर रिटर्न्स टू द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट जो मिनिमम लीगल प्राइस लगाता है वो जनरली एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए लगाता है, फार्मर्स के लिए लगाता है, क्योंकि जब भी बम्पर क्रॉपिंग होता है ना, जब बहुत अच्छी फसल होती है तो प्राइसेस मार्केट में ड्रॉप हो जाते हैं एंड फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द मार्केट प्राइस टू इंश्योर दैट फार्मर्स आर एंटाइटल्ड टू दे गेट fair reward, fair return
फॉर देयर प्रोड्यूस, उन्होंने जो भी बनाया है उसके लिए उनको रिवॉर्डिंग रिटर्न्स मिलना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस फ्लोरिंग को इम्पोज करता है। नाउ चलिए आइए समझते हैं कि फ्लोर प्राइस को इम्पोज कहाँ किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले प्राइस डिराइव होगा थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो शुरू करते हैं बाय मेकिंग आवर डायग्राम। क्वांटिटी प्राइस, पहले बनेगा आपका इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई, दिस इज माय इनिशियल इक्विलिब्रियम, हियर इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेबलिंग कर लेते हैं डी डी एस एस, दिस इज माय इक्विलिब्रियम, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। नाउ जैसा कि नाम है मिनिमम प्राइस या प्राइस फ्लोरिंग है। फ्लोर का मतलब अगर आप इसको नीचे लगा देते हो, if you set this floor price below equilibrium price, again it makes no sense, it will have no effect, ठीक है, it will have no effect। why? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने जो प्राइस सेट किया है वो तो इसके ऊपर है। सो डज इट मेक एनी सेंस कि प्रोड्यूसर्स के लिए आप प्राइस को और ज्यादा नीचे सेट कर दो? इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज एट अ लोअर प्राइस डिमांड इज गोना इंक्रीज, but producers will be willing to supply a lesser quantity, and as a result of which there will emerge an excess demand. Due to excess demand there will emerge a shortage, and due to shortage the price will go back again to its initial equilibrium position at point E. Therefore, to be meaningful, to be impactful, legal price को set किया जाएगा, legal price को set किया जाएगा above the market at P2, ऊपर set किया जाएगा। एंड यहां लिख दीजिएगा मिनिमम प्राइस परमिटेड, ठीक है, मिनिमम प्राइस परमिटेड, क्या आप ऊपर परमिट कर रहे हो। अब जैसे ही प्राइस को ऊपर ले जाया गया तो मार्केट से तो ज्यादा रिटर्न आ रहा है, मार्केट से तो प्राइस ऊपर चला गया है। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिंस गवर्नमेंट इज रेजिंग द प्राइस through imposing minimum price at a higher price, sellers would be willing to supply a larger quantity. So let's take F quantity, but at a higher price consumers will be willing to purchase a lesser quantity, say G quantity, and as a result of which there will emerge an excess supply, and due to excess supply there will emerge an unsold surplus, ठीक है, unsold surplus। इस unsold surplus को निकाल लेते हैं हम लोग। Say your supply is Q1 quantity and demand is Q2 quantity, ठीक है। सो अगर मैं OQ1 को माइनस कर दूं OQ2 से, so I'm getting my gap which is by GF, and this GF indicates my unsold surplus, ठीक है, GF indicates my unsold surplus। Now due to unsold surplus क्या prices अपने आप नीचे आ जाएगा? नहीं, ये लीगल प्राइस है, प्राइस अपने आप नीचे नहीं आएगा। तो यहां पे क्या इफेक्ट होगा, इस लीगल प्राइस का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा कि सिंस कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जा रहा है, देयरफॉर गवर्नमेंट विल परचेज, सरकार क्या करेगा, सरकार खरीद लेगा जितना भी अनसोल्ड सरप्लस रह जा रहा है। गवर्नमेंट विल परचेज द अनसोल्ड सरप्लस, दैट इज हमारे केस में इट वाज बाय जीई अमाउंट, टू मेंटेन बफर स्टॉक, ठीक है। गवर्नमेंट जीई अमाउंट को परचेज कर लेगा टू मेंटेन बफर स्टॉक, यानी जितना प्राइस, जितना क्वांटिटी ये जीएफ अमाउंट से जो नहीं बिक रहा है मिनिमम प्राइस पे, गवर्नमेंट उसको परचेज करके बफर स्टॉक बना के रख लेगा। एंड जनरली ये काम किसका होता है? ये काम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का काम होता है बफर स्टॉक मेंटेन करने का, ठीक है। सो गवर्नमेंट विल इंश्योर कि प्राइस ड्रॉप ना हो जाए एक बार जो मिनिमम प्राइस सेट हो गया है, रादर जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद के बफर स्टॉक बना के अपने पास रख लेगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस स्टॉक को यूज किया जा सके उस इमरजेंट सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर, एंड विद दिस
we come to an end of market mechanism. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है. And if you are liking my explanation, then please I request you all to kindly like, share and subscribe so that it can motivate me to post more such quality content. आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊं. सो काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए. आज अब से बस 7 महीना रह गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को, और ज्यादा डिले मत करिए. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप प्लीज मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, आर्यन ट्यूटोरियल, वहां से जाके आप एक्सेस कर पाओगे. ठीक है. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल टेक अप चैप्टर 7, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न. Till then, keep smiling, keep studying, take care, bye bye.